غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری 36 گھنٹوں میں مزید 310 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 17,487 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے آثار قدیمہ پر حملہ کرتے ہوئے 650 سال پرانی العمری مسجد بھی شہید کر دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی ہے۔ قرارداد ویٹو کرنے پر متحدہ عرب امارات نے مایوسی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں نائب امریکی سفیر رابرٹ ووڈ کا کہنا تھا کہ قرارداد کا ڈرافٹ غیر متوازن ہونے کے علاوہ حقیقت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس قرارداد سے معاملے کا کوئی ٹھوس حل نہیں نکل سکتا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ حکومتیں اسے ترجیح کے طور پر نہیں دیکھ رہی۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قابل اعتبار روڈ میپ بھی ہونا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ پولیس نے ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اسلام آباد میں پولیس کے سابق انسپکٹر جنرلز کی 7ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے دور میں معیشت بہتر اور ترقی عروج پر تھی اور ہمارے دور میں ہر لحاظ سے معاشرہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن کچھ کرداروں نے سب کچھ ٹھپ کر کے رکھ دیا۔ پتہ لگنا چاہیے کہ 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا گیا۔ اپنے کسی دوست اور ساتھی کو بھولا نہیں، ہمیشہ یاد رکھا۔ آج بھی دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو مشکلات سے ضرور نکالے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے دور میں معیشت بہتر اور ترقی عروج پر تھی اور ہمارے دور میں ہر لحاظ سے معاشرہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن کچھ کرداروں نے سب کچھ ٹھپ کر کے رکھ دیا۔ پتہ لگنا چاہیے کہ 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا گیا۔ اپنے کسی دوست اور ساتھی کو بھولا نہیں، ہمیشہ یاد رکھا۔ آج بھی دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو مشکلات سے نکالے۔ لاہور میں اسموگ کا رعب برقرار ہے، تدابیر کے باوجود فضائی آلودگی میں بہتری نہ آ سکی۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج بھی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 284 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کی فضا بھی انتہائی مضر صحت ہے، AQI 241 ریکارڈ۔ شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت راولپنڈی ڈویژن نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کی عبوری ضمانتوں میں 4 جنوری تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان 10 کیسز سے میرا کوئی تعلق نہیں، زندہ رہا تو قلم دواز سے الیکشن لڑوں گا۔ اداروں کا ہمیشہ میں نے احترام کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے جلال پور جٹا میں سیاسی میدان سجا لیا۔ مریم نواز شریف آج جلال پور جٹا اسٹیڈیم میں یوتھ کنونشن سے خطاب کریں گی۔ کنونشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 80 فٹ چوڑا اور 40 فٹ اونچا اسٹیج تیار کیا گیا۔ پنڈال کو چاروں اطراف سے پارٹی پرچموں اور پینافلیکس سے سجا دیا گیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہوئی۔ جہانگیر ترین بیمار تھے تو شہباز شریف ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ جہانگیر ترین اب شہباز شریف کے پاس ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا پرائم منسٹر 11 کے درمیان 4 روزہ میچ ڈرافٹ ہو گیا۔ کینبرا کے مانوکا اوول گراؤنڈ میں پاکستان اور پرائم منسٹر 11 کے درمیان کھیلا جانے والا 4 روزہ میچ مسلسل بارش کی وجہ سے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ گراؤنڈ گیلا ہونے کی وجہ سے میچ کے چوتھے روز کھیل شروع نہ ہو سکا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلی اننگز کو
391 रन पर डिक्लेयर कर दिया था। कप्तान शान मसूद ने 201 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन क्रिकेट टीम के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच केविस ने जीत लिया। बारिश के बाद ये मैच मुकम्मल न हो सका और ग्रीन कैप्स को 6 विकेटों से शिकस्त हो गई, लेकिन सीरीज 2-1 से पाकिस्तान वुमेन टीम के नाम रही। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन टॉप स्कोर रही। उन्होंने 38 गेंदों पर 43 रन स्कोर किए। मारूफ अदाकारा रेशम ने कहा कि कभी भी किसी अदाकार या शोबिस शख्सियत से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि शोबिस इंडस्ट्री में होने वाली शादियां ज्यादा अरसे तक नहीं चलती। शादी किसी अच्छी जगह हो जाती तो शोबिस को काफी पहले ही खैराबाद कह देती। आज के दौर में मियाँ बीवी में बर्दाश्त खत्म हो गई है, इसी वजह से तलाक की शरह में भी इजाफा हो गया है। ये रिश्ता बर्दाश्त से ही चलता है। कहीं पर बीवी को बर्दाश्त करना चाहिए और कहीं पर शोहर को भी बर्दाश्त करना जरूरी है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ कॉमेडियन अदाकार निराला को दुनिया से रुखसत हुए 33 बरस बीत गए। निराला ने 100,000 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और मसाहिया किरदारों से खूब शोहरत कमाई। निराला ने फिल्म सपेरन, मिस्टर एक्स, शरारत, छोटी बहन, हेरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दो राह, जमीन का चांद, इंसान और गधा, जहां तुम वहां हम, नसीब अपना अपना जैसी कामयाब तरीन फिल्मों में अपने मसाहिया किरदार निभाकर शायकीन सिनेमा के दिल जीत लिया। आखिरी फिल्म चोरों का बादशाह थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में जंग बंदी के लिए करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी है। करारदाद के हक में 15 में से 13 वोट पड़े। बरतानिया वोटिंग के अमल से बाहर रहा। अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने मायूसी का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मुतवाज़न होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं है। इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। अमरीका इस मसले में देर पा क़याम अमन की भरपूर हमायत करता है, जिससे दोनों फ्रीक एक दूसरे के साथ अमन और सलामती के साथ रह सके। नायब अमरीकी सफीर रॉबर्ट वुड ने मजीद कहा कि हम इस करारदाद की हमायत नहीं कर सकते जो गैर पायदार जंग बंदी का मुतालबा करती है। उससे सिर्फ एक नई जंग का बीज बोया जा सकता है। करारदाद को बेहतर बनाने के लिए इसमें हमास के 7 अक्टूबर के हमले के मजम्मत को शामिल किया जाए, जिसमें 1200 इसराइली हलाक और 240 से ज्यादा यरगमाली बना लिए गए थे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि गजा में फौरी जंग बंदी जरूरी है। ऐसा लगता है कि कुछ हुकूमतें उसे तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसल बिन फरहान ने कहा कि फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काबिले एतबार रोड मैप भी होना चाहिए। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात से कबल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा के एक ग्रुप ने कहा कि हमास के अक्सरियत पसंदों और इसराइली फौज के दरमियान फलस्तीनी इंक्लू में होने वाली लड़ाई को फौरी तौर पर रोकने पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। इस मौका पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में जंग बंदी के हवाले से हमारा मौक़िफ़ इस मुस्तकिल और बिल्कुल वाज़ेह है कि लड़ाई को फौरी तौर पर खत्म करना जरूरी है, जबकि इसराइल फलस्तीन तनाज़े के खत्म न होने की एक अहम वजह बैनुल अक़वामी बरादरी की बुनियादी तरजीह का न होना है।
दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पुलिस ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम महकमा पुलिस के मकरूज हैं। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें बहुत सी चैलेंजेस दरपेश हैं। नाज़िम वही दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पुलिस ने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, हम महकमा पुलिस के मकरूज हैं। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें बहुत सी चैलेंजेस दरपेश हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पेशे से ताल्लुक रखते हों, अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन से करना चाहिए। पुलिस को अपने सुख बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी होती है। मुलाजमत की नौयत जो भी हो, हमें अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन से करना चाहिए। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि कुछ किरदारों ने भागते दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। लाहौर में पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि हम नजरों से ओझल लेकिन दिल के बहुत करीब रहे हैं। अपने किसी दोस्त और साथी को भूला नहीं, हमेशा याद रखा। आज भी दुआ है कि अल्लाह इस कौम को मुश्किलात से निकाले। उन्होंने कहा कि कौम ने पिछले 4 साल बहुत मुश्किल दौर देखा। हमारे दौर में मईशत और बेहतर और तरक्की अरूज पर थी और हमारे दौर में हर लिहाज से मुआशरा आगे बढ़ रहा था। नासिन, अब कुछ बात स्मोक से मुतालिक। लाहौर में स्मोक का रोक बरकरार है। तदाबीर के बावजूद फ़ज़ाए आलूदगी में बेहतरी ना आ सकी। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर फ़ज़ाए आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर विराजमान है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर कायद कराची की फ़ज़ा भी इंतहाई मुज़र सेहत है। AQI 241 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाए आलूदगी के बाद शहरियों का सांस लेना भी महाल हो चुका है। तिबी माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी आलूदगी की शरह 187 रिकॉर्ड की गई है। नासिर, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी डिवीजन ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की बुरी जमानतों में 4 जनवरी तक तोसी कर दी है। दोनों के खिलाफ 9 मई के दर्ज मुकदमात के खिलाफ समाअत हुई है। जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक अपने वकील सरदार अब्दुल रज़ाक के हमरा अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। सरकारी वकला ने हितमी दलाल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की इस्तदा कर दी है। अदालत ने हतमी दलाल के सरकारी वकला की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
اور اب کچھ بات جلسے کی صورتحال سے متعلق تو مسلم لیگ نون نے جلال پور جٹا میں سیاسی میدان سجا لیا۔ پارٹی کے سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف آج جلال پور جٹا اسٹیڈیم میں یوتھ کنونشن سے خطاب کریں گی۔ پارٹی سرائے کے مطابق مریم نواز مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم، پارٹی کے مستقبل کے لائحہ عمل اور پالیسیوں کے حوالے سے اظہار خیال کریں گی۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہوئی۔ ایک انٹرویو میں علیم خان نے کہا کہ جہانگیر ترین بیمار تھے تو شہباز شریف ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ جہانگیر ترین اب شہباز شریف کے پاس ملاقات کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر سگالی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی ایجنڈے کی ملاقات نہیں تھی۔ کسی ایجنڈے کی ملاقات ہوگی تو پہلے 30 رکنی CEC میں جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے وطن واپس آنے کے بعد قوم کی مایوسیاں ختم ہو گئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ چترال سے پارٹی رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی شہزادہ افتخار الدین کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں انسٹیٹیوشن آف انجینئر سعودی عرب سینٹر کے زیر اہتمام سینٹر کے مڈ ٹرم ٹیکنیکل سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں انسٹیٹیوشن آف انجینئر سعودی عرب سینٹر کے زیر اہتمام سینٹر کے مڈ ٹرم ٹیکنیکل سیمینار کا باقاعدہ انعقاد کیا گیا ہے، جس میں انجینئر کامران کنڈی نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے عنوان پر ایک پریزنٹیشن پیش کی۔ چیئرمین انجینئر ڈاکٹر محمد رفیق چودھری نے اس نوعیت کے پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے سعودی حکومت کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور امارات پر اطمینان کا اظہار کیا جو سعودی عرب میں پاکستانی انجینئرز کو حاصل ہیں۔ دیگر مقررین میں انجینئر عاصم صدیقی، انجینئر فاروق اقبال، انجینئر میاں عبدالحامد اور حافظ عمران نے بھی خصوصی خطاب کیا۔ آخر میں مہمان خصوصی نے سیمینار کے اسپیکر انجینئر کامران کنڈی کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا ہے۔ ناظرین، خبر شامل کریں گے شہداد کوٹ سے، جہاں تھانہ سیکشن پولیس کی بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ 1000 لیٹر ایرانی پیٹرول برآمد کر لیا گیا۔ ملزم علی اصغر چانڈیو نان کسٹم پیڈ ایرانی پیٹرول لوڈر رکشے پر ٹینک میں بھر کر اسمگل کے لیے لے جا رہا تھا۔ پولیس نے اسمگل ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ وہیں دوسری جانب جھڈو میں اتحاد اہل سنت کے زیر اہتمام مفتی تنویر احمد طاہری کی میزبانی میں منعقدہ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معروف جید علماء کرام نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سرعام قادیانیوں کی گمراہ کن تبلیغ کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور بسود قوت قادیانیت کے پرچار کو روکا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ کی جانب سے قادیانیوں کی پشت پناہی میں ملوث عناصر کو بے نقاب کیا جائے گا۔ ختم نبوت اور حرمت رسالت کے لیے جان اور سر دھڑ کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ انتظامیہ قادیانیوں کی حمایت سے باز آئے، ورنہ شمع رسالت کے پروانے قانون ہاتھ میں لینے سے گریز نہیں کریں گے، جس کی ذمہ داریاں پولیس اور انتظامیہ ہوگی۔ مولانا میاں عبدالباقی، سید عادل علی شاہ، سید عاصم علی شاہ، سید طارق علی شاہ، سید مظفر حسین شاہ، آغا محمد ایوب، مفتی حق النبی سکندری، مفتی محمد ابراہیم قادری اور دیگر نے اس حوالے سے شرکت کی۔
नाज़रीन खबर शामिल करेंगे कश्मीर से, जहां गांव फैज मोहम्मद मजारी में 62 शख्स की जानिब से जरी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज है। नारेबाजी की मुजाहरीन का कहना था कि अंग्रेज दौर में बुजुर्गों ने जमीनें खरीद कर आबाद की थी, जिनके तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। 62 शख्स जमीनों पर कब्जा कर रहा है, जिसको दरखास्त अली इंतजामिया पुलिस को भी दी, कोई सुनवाई न हो सकी। मुजाहरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर 62 शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे समंदरी से, जहां मोहल्ला शौकताबाद में फूड पॉइजनिंग से 6 अफराद की तबीयत खराब हो गई है। मरीजों को सिविल अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम कर दी गई। वालदा के मुताबिक पराठे खाने से अचानक तबीयत खराब हुई। मुतासरीन में सूफिया, सोनिया, फैजान, सहर, अहमद और खदीजा शामिल हैं। मुतासर मोहल्ला शौकताबाद गली नंबर 9 के रहायशी हैं। खबर शामिल करेंगे आरिफवाला से, जहां लाहौर से बहावलनगर मनशियात की सप्लाई नाकाम बना दी गई। कार से वलायती शराब की 200 बोतल और 2 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। कार्रवाई SHO वकास चौधरी ने की। मुल्जिम एजाज मसीह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नासिर खबर शामिल करेंगे पाकपतन के निजी कॉलेज से, जहां नाश्ता डे का एहतमाम किया गया। सर्द मौसम में किसी ने नान चने से लुत्फ उठाया तो किसी ने हलवा पूरी पर खूब हाथ साफ किए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम में गर्म हलवा पूरी। पाकपतन के निजी कॉलेज में नाश्ता के त्यौहार पर तालिब इल्मों ने गर्मा गर्म हलवा पूरी से खूब लुत्फ उठाया। आज हमारे कॉलेज में नाश्ता डे का एहतमाम किया गया, जिस पर हम सब दोस्तों ने मिलकर नाश्ता किया और बहुत इंजॉय किया। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि ऐसे त्यौहार मनाने का मकसद तालिब इल्मों को तफरीह के मौके फराहम करना है। Alhamdulillah, our students enjoyed nashta and they enjoyed music because their exam is coming, the send-up exam, and they want to refresh themselves for that exam. कि entertainment is a part of life, तो बच्चों ने खूब इंजॉय भी किया और आई होप सो कि बच्चे नेक्स्ट भी इस तरह इंजॉय करेंगे। ये इसलिए था कि बच्चे आगे फर्दर एग्जाम में बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस दे सकें। इस मौका पर तालिब इल्मों ने आपस में खुश गपियां लगाई और खूब इंजॉय किया। तारिक चिश्ती, कोहिनूर न्यूज, पाकपतन। नासिर खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां सर्दियों के लिए गई अंगड़ाई। लोगों ने क्या लंडा बाजार का रुख, लेकिन वहां पर महंगाई के डेरे हैं। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली मिरानी की इस खसूसी रिपोर्ट में। डेराजी खान, गर्मियां हुई खत्म, सर्दियों ने ली अंगड़ाई। लुंडा बाजार के दुकानदारों ने कर ली छुरियां चाकू तैयार अपने ग्राहकों की चमड़ी उधेड़ने के लिए। सफेद पोश हजरात का भरम रखने के लिए एक लंडा बाजार होता है, लेकिन अब वहाँ भी महंगाई ने डेरे डाल दिए। लुंडा बाजार में गर्म मलबूसात हुई महंगी। लंडा बाजार आए थे कि कुछ बच्चों के लिए चीजें ले सके, लेकिन यहाँ आए हैं तो हालात ही कुछ और नजर आ रहे हैं। जितनी सैलरी है उससे तो ज्यादा गए, हमें वो बता रहे हैं, रेट्स इतने बता रहे हैं कि इस सैलरी में तो हमारी मैनेज नहीं हो सकती। तो जाए कहाँ, जबकि दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि हमें बाहर से चीजें महंगे मिल रही हैं। 5000 वाली शय बंडल 20000 ਦਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਟੈਕਸ ਇਤਨਾ ਵਧੇ ਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰੂ। हुकूमत को अपील है कि टैक्स खत्म किते वजन, लंडा सस्ता किता वजन, किडे मरे गरीब अवाम। दुकानदार हजरात का कहना है कि हमें चीजें महंगी मिल रही हैं तो हम भी महंगी बेचेंगे। नासरीन, मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी है। सरगोदा डिवीजन में 7000 लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग की गई। मिलावट पर 1440 लीटर दूध को तल्फ कर दिया गया। बखर से 1000 लीटर, मियावाली में 60 लीटर, खुशाब में 380 लीटर दूध तल्फ किया गया है। सरगोदा को दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। जालसाजी पर 2 सप्लायर्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। बखर में कायदे स्वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 9 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। खुशाब में दूध में पानी की मिलावट पर 4 गाड़ियों को जुर्माना किया गया है। मियावाली में मिलावटी दूध की स्टोरेज पर 1 सप्लायर के खिलाफ एक्शन लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से, जहां थाना फुलरवान पुलिस की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 2 कार सवार स्मगलर्स जाबर और इसरार रंगे हाथों पकड़े गए। मुलजिमान के कब्जे से 7 किलोग्राम इफ्यून और 3 किलोग्राम चर्स बरामद।
पुलिस ने जेर इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। मुलजिमान मुनशियात पेशावर से लेकर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करते थे। नासिर, खबर यह है कि डीपीओ जेहलम राना उमर फारूक ने कहा है कि जिला भर में अमन का कायम, मुनशियात का खात्मा, जराइम पेशा नासिर की बेहकनी, लोगों के जानो माल की हिफाजत और बर वक्त इंसाफ की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने कहा है कि जिला भर में अमन व अमान का क़याम, मंशियात का खात्मा, जराइम पेशा अनासर की बीख कनी, लोगों के जानो माल की हिफाजत और बर वक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस फोर्स शहरियों को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ की फराहमी के लिए हम वक्त कोशां है। दफ्तरी औकात में साइलिन बिला झिझक अपनी शिकायत और मसाइल के हल के लिए मुझसे मिल सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जायज़ मसाइल को मेरिट पर हल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में साइलिन की दरखास्तों की समाअत के दौरान किया। इस मौके पर पुलिस कंप्लेंट सेल इंचार्ज ASI ताहिर इकबाल भी मौजूद थे। DPO ने कहा कि पुलिस अफसरान आवाम की खिदमत करते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं, दरख्वास्त गुजारों के मसाइल कंधा पेशानी से सुनकर इन्हें रिलीफ फराहम करें, शहरियों के दर्द को अपना दर्द समझें, इनके मसाइल बिला ताखीर हल किए जाएं। सुस्ती और गफलत हर पुलिस अफसर और अहलकार अपने अफ़ाल का खुद जिम्मेदार होगा। कैमरामैन अब्दुल्ला मुल्तज़म के साथ खालिद चौधरी। खबर शामिल करेंगे आरिफवाला से, जहां जदीद तिबी सहूलियात से रास्ता चिल्ड्रन हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया है। अस्पताल में 24 घंटे चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद होंगे। मोहम्मद अहमद शाह बुखारी ने मियां मोहम्मद सरवर चोइया के हमरा बाकायदा इफ्तिताह किया और खुसूसी दुआ भी कराई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे रसा सैदी। जी, डॉक्टर उमैर मुस्तफ़ा डोगर और डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया, डॉक्टर मोहसिन वकार की मुश्तरका काविश से जदीद तिब्बी सहूलियात से रास्ता चिल्ड्रन हस्पताल की इफ्तिताही तकरीब मुनक़द हुई। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया के बड़े भाई मियां मोहम्मद सरवर जोया और मोहम्मद अहमद शाह बुखारी ने इफ्तिताही रिबन काटा और खैर व बरकत के लिए दुआ भी कराई गई। इस मौके पर DHO डॉक्टर आसिफ जलीस, चेयरमैन फ्रंटियर कॉलेज चौधरी नासिर हमीद, डॉक्टर गुलजार राजा और दीगर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, मजहबी शख्सियात समेत समाजी, कारोबारी और सहाफ़ती शख्सियात ने भी शिरकत की। डॉक्टर उमैर मुस्तफ़ा और डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया ने कहा, चिल्ड्रन अस्पताल का मकसद आरीवाला की आवाम को बड़े शहरों के मुकाबले सहूलियात की फराहमी है। हमारी कोशिश है कि किसी शहरी को अपने बच्चों के इलाज के लिए दूसरे शहरों में न जाना पड़े, बल्कि वही सहूलत इधर मुहैया हो। यहाँ पर पैदाइश से लेकर 16 साल तक के बच्चों का इलाज किया जा सकेगा। तमाम शुरका ने इस काविश को सराहते हुए कहा कि हमारे शहर को चिल्ड्रन अस्पताल की अशद जरूरत थी। डॉक्टर का कहना है कि मुस्तहिक अफराद के बच्चों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। रजा जैदी, कोहिनूर TV, आरिफवाला। नासिर, खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से, जहां डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून की जेर सदारत खाद की कीमतों का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए DC का कहना था कि जिला में किसी सूरत खादों की मसनूई किल्लत या ब्लैक मार्केटिंग हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे शहबाज प्रिंस। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून की जेर सदारत जिला में खाद की तलब, रसद और कीमतों का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्कद हुआ, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िला में किसी सूरत ज़रूरी खादों की मसनूई किल्लत या ब्लैक मार्केटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि मुलव्वस डीलर्स को जुर्माना करने के बजाय बराह रास्त मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात में बंद किया जाएगा। उन्होंने तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और रेवेन्यू ऑफिसरान को हिदायत की कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए और जो डीलर खाद की खिलाफ फरोशी में मुलव्वस हो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने खाद डीलर्स को हदायत की कि वो ज़िला में कायम सहूलत सेंटर पर फर्टिलाइज़र कंपनियों की जानिब से फराहम तमाम खादों का रिकॉर्ड नुमाया जगहों पर आवेज़ा करे, किसी फरीक के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी,
जबकि जिला में सिर्फ वही डीलर्स खाद की फरोख्त करने का मजाज होगा जिसके नाम से फर्टिलाइजर कंपनियां सप्लाई फराहम करेंगी। खाद डीलर्स अपने फर्म के नाम से आने वाली खाद किसी दूसरे मकाम पर फरोख्त नहीं कर सकते। इस पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा ज़राअत के अफसरान को हदायत की कि तमाम तहसीलों में शिकायत सेंटर कायम किए जाएं और महंगे दामों खाद फरोख्त करने की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाए। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी लतीफ़ुल्लाह समेत खाद डीलर्स और एसोसिएशन के ज़िला सदर और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा शहबाज प्रिंस, कोहिनूर, बहावलनगर। नासिर वही दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ। इजलास में देही मराकज़ सेहत, बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल डिस्पेंसरी में लोगों को इलाज मुआवजे की दी जाने वाली सहूलियात का भरपूर जायजा लिया गया। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर के ज़ेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में देही मराकज़ सेहत और बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल डिस्पेंसरी में इलाके के लोगों को इलाज मुआवजे की दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया गया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, DHO प्रोवेंटिव सर्विस डॉक्टर उसामा मुनीर, DHO डॉक्टर जिशान रऊफ, डॉक्टर खालिद दनाइन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग में मराकज़ सेहत और दवात की दस्तावेज़ और लोगों को तिब्बी सहूलत की फरहमी के हवाले से जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि लोगों को तिब्बी सहूलत की फरहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि माँ और बच्चे की सेहत के प्रोग्राम को कामयाबी से हमकरार किया जाए। इस मौके पर CEO हेल्थ ने बताया कि दहाई इलाका जात में 25 रूरल हेल्थ सेंटर एम्बुलेंस दस्तियाब हैं, जिसकी मदद से हामला ख़वातीन और ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों को घरों से लेकर बुनियादी मराकज़ सेहत और दहाई मराकज़ सेहत में पहुँचाकर तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर बताया गया कि दहाई इलाका जात में कैंप्स हेल्थ सेंटर्स में बच्चों को हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर सैयद शाह ने बताया कि मराकज़ सेहत और पारदियात का स्टॉक मौजूद है। डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। कैमरामैन खुरम स्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। खबर शामिल करेंगे आरिफवाला से, जहां 8वां ऑल पाकिस्तान एक्सपर्ट इंटरनेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पसीर हो गया। बड़े इवेंट में मुल्क भर से कुल 32 टीमों ने पंजा आजमाई की फाइनल में साहिर एसोसिएट लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी को हराकर टाइटल जीत लिया। आरिफवाला से आसिफ सुगैरा की ये खसूसी रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में जारी 9वां ऑल पाकिस्तान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम को पहुंच गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट का फाइनल साहिर एसोसिएट लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के दरमियान खेला गया। क्रिकेट शायकीन चौके छक्के और विकेटें गिरती देखकर खूब महसूस होते रहे। साहिर एसोसिएट लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर को 7 विकेटों से हराकर मेगा इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। जितना भी इवेंट है ये, इसका फर्स्ट प्राइज था 3 लाख रुपया और सेकंड था लाख रुपया। इंडिविजुअल प्राइजेस मिला के 5 लाख रुपया बनता है टोटल। तो इस पे टूर्नामेंट पे जो एक्सपेंसेस आते हैं हमारे 40 से 45 लाख रुपए आते हैं, जो ईच एंड एवरीथिंग हम क्रिसेंट फैमिली खुद ही मैनेज करती है सारा। हमारे स्पॉन्सर जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ तावन करते हैं, जिस वजह से ये टूर्नामेंट कामयाब होता है। मैच के इख्तिताम पर टूर्नामेंट मुंतजमीन की जानिब से फातेह टीम को 3 लाख रुपए कैश प्राइज बीमा ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 1 लाख रुपए कैश प्राइज बीमा ट्रॉफी से नवाजा गया। नासिर खबर शामिल करेंगे आबादपुर से, जहां सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद हाशिम नागा झुलन की बेटी की तकरीब शादी है, जिसमें ऑल पाकिस्तान झुलन बरादरी के सदर सरदार मीर खालिद झुलन, सरदार शेर आलम खान मजारी, सरदार दोस्त अली खान मजारी और सरदार जाम हबीब नवाज झुलन ने भरपूर शिरकत की है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आशिक हुसैन झुलन। आबादपुर के नवाही इलाका बस्ती महबूब नागा झुलन में सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद हाशिम नागा झुलन के बेटे मोहम्मद वक्कास हाशिम की शादी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें झुलन बरादरी, आल पाकिस्तान के सदर सरदार मीर खालिद खान झुलन, साबिक MNA सरदार रियाज महमूद के फर्जंद सरदार शेर आलम खान मजारी, सरदार दोस्त अली खान मजारी, चीफ कबाइल झुलन बरादरी जाम हबीब नवाज झुलन, सैयद अत्ता हुसैन शाह और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने ख़ुसूसी शिरकत की। बरादरी के सरबराहान को रस्म पग भी पहनाई गई। इस मौका पर झुलन बरादरी पंजाब के सदर जाम अर्ज़ मोहम्मद झुलन, जाम फरूक अहमद झुलन, अब्दुल मालिक झुलन, गुलाम मुस्तफ़ा झुलन, मास्टर अब्दुल हकीम, ज़हूर अहमद, मास्टर अल्लाह बदाया और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की।
رپورٹ کر رہے تھے آبادپور سے ہمارے KN نیوز کے نمائندے عاشق حسین جھولن۔ ناصر خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا باقاعدہ انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا موضوع بیماریوں کے خلاف مدافعت بصریہ جینیٹکس تھا۔ رپورٹ کریں گے فیصل زادہ۔ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کالج آف ویٹرنری سائنس اینڈ اینیمل اور ہسبینڈری کے زیر اہتمام پہلا بین الاقوامی 2 روزہ کانفرنس اختتام پذیر ہو گیا۔ انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد اور ڈپارٹمنٹ ایکولائی پارما اسلام آباد کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر غیر ملکی ماہرین نے تائی لینڈ، امریکہ، روس، چائنا، ترکی اور افغانستان سے آن لائن شرکت کی۔ کل ڈیزیزز کا پریشر بہت زیادہ ہے، ND اور جو کرونے کا وائرس کا، تو وہ پریشر انشاءاللہ اس کانفرنس کی وساطت سے انشاءاللہ ویکسینیشن تیار ہو، اپنا ذاتی ملک کا ویکسینیشن تیار ہوگا اور وہ انشاءاللہ پورا کوپریشن ہم کو ملے گا۔ تو کانفرنس میں ہمیں بہت ساری مفید ٹپس ملے، انفارمیشن ملی کہ ND اور جو مائکوپلازما ڈیزیز ہے ان کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اور پھر یہ بھی اس پہ بھی بات ہوئی کہ آگے پاکستان میں اور مردان کے لیول پہ ویکسین کس طرح بنائیں گے اور میڈیسن کس طرح بنائیں گے۔ تو ہم پولٹری فارمر کافی امید ہیں اس انٹرنیشنل پروگرام سے۔ پولٹری فارمرز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے نائب چیئرمین سید اکبر اور دیگر مقررین نے کہا کہ اس کانفرنس کی وساطت سے ہمیں ان خطرناک امراض کے حل کے لیے خبر شامل کریں گے بہاول نگر سے، جہاں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت کھاد کی قیمتوں کا بھرپور جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے DC کا کہنا تھا کہ ضلع میں کسی صورت کھادوں کی مصنوعی قلت یا بلیک مارکیٹنگ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے شہباز پرنس۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت ضلع میں کھاد کی طلب رسد اور قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع میں کسی صورت زرعی کھادوں کی مصنوعی قلت یا بلیک مارکیٹنگ برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ ملوث ڈیلرز کو جرمانہ کرنے کے بجائے براہ راست مقدمہ درج کرتے ہوئے حوالات میں بند کیا جائے گا۔ انہوں نے تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اور ریونیو آفیسران کو ہدایت کی کہ کھاد کی بلیک مارکیٹنگ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے اور جو ڈیلر کھاد کی غرا فروشی میں ملوث ہو اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کھاد ڈیلرز کو ہدایات کی کہ وہ ضلع میں قائم سہولت سینٹر پر فرٹیلائزر کمپنیوں کی جانب سے فراہم تمام کھادوں کا ریکارڈ نمایاں جگہوں پر آویزہ کرے، کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، جبکہ ضلع میں صرف وہی ڈیلرز کھاد کی فروخت کرنے کا مجاز ہوگا جس کے نام سے فرٹیلائزر کمپنیاں سپلائی فراہم کریں گی۔ کھاد ڈیلرز اپنے فرم کے نام سے آنے والی کھاد کسی دوسرے مقام پر فروخت نہیں کر سکتے، اس پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنرز اور محکمہ زراعت کے افسران کو ہدایات کی کہ تمام تحصیلوں میں شکایات سینٹر قائم کیے جائیں اور مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے کی شکایات پر فوری ایکشن لیا جائے۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت چودھری لطیف اللہ سمیت کھاد ڈیلرز اور ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہباز پرنس، کوہ نور، بہاول نگر۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت کینال روڈ انڈر پاسز تزئین و آرائش بارے پیش رفت کا خصوصی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں انڈر پاسز کی بیوٹیفیکیشن کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کی سخت ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ مزید تفصیلات کے مطابق کمشنر لاہور نے جیل روڈ انڈر پاس کی تزئین و آرائش کو اگلے 48 گھنٹوں میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین کا کہنا ہے کہ تمام انڈر پاسز پر اگلے 2 ہفتوں کے دوران کام مکمل کر لیا جائے گا۔ انڈر پاسز پر سول ورک رات 10 بجے تا صبح 6 بجے تک کیا جائے گا۔ ٹریفک روانی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں کینال روڈ کے دونوں اطراف پر موجود 9 انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کا کام شروع ہے۔ ٹھوکر نیاز پہ تا انڈر پاس دھرمپورہ تک دونوں اطراف کام کیا جا رہا ہے۔
नासिर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब का बाकायदा इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 30 पुलिस अफसरान को डीएसपी ओहदे के रैंक लगाए। तकरीब में तरक्की पाने वाले अफसरान के अहले खाना बच्चों ने खुसूसी शिरकत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नए डीएसपीज को सुपरवाइजरी रूल बारे अहम हिदायत भी जारी की। तमाम अफसरान जदीद एप्लीकेशंस IT बेस्ड मॉडर्न पॉलिसिंग को अपनी पॉलिसिंग का लाजमी जुज बनाए। पंजाब पुलिस एडिशनल IG की सरबराही में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का डिपार्टमेंट बनाएंगे। IG पंजाब का कहना था कि नए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिपार्टमेंट से पंजाब पुलिस मजबूत कारकर्दगी बेहतर होगी। डीएसपी ट्रैफिक के ओहदे पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड जल्द होगा। नए डीएसपी ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को आसान बनाने के अज़्म का अयादा किया है। इस मौका पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस, एडिशनल IG पंजाब, DIG एस्टेब्लिशमेंट, DIG स्पेशल ब्रांच, AIG डिसिप्लिन, AIG एडमिन समेत दीगर अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।